Hello and a very warm welcome to everyone. I, Kumar, welcome you to this platform where we simplify your preparations. So, today in our bag again, we have a very important session for you, and it's nothing but it is ZAT 2025 Complete Detailed Solution. Now, you might have been gone to the paper, and many of the questions at a time it might have appeared controversial to you, but the questions actually controversial or it is somewhere we are lagging with the concept. So just to clarify your doubts, okay, so we are back, so we are with this video. So in this video we'll have a detailed analysis of each and every question and what can be the method to solve the question, so we'll be discussing. So without taking much of your time, let's quickly start off with the question. So here we go, and before we begin, just to inform you, if you want to if you want to book a strategy call with our experts to resolve your doubts and challenges, just comment MBA and our team will reach to you. Okay. So here we have the first question of the day. Now, what this question is and how to deal this question. So the question says that there are 25 rooms in a hotel. Okay, so we have a hotel, and in that hotel there are 25 rooms. Each room can accommodate at most 3 people. Okay, the maximum number of people who can stay in a room is 3. For each room, the single occupancy charged rupees 2000 per day, double occupancy is charged rupees 3000 per day, and the triple occupancy is charged rupees 3500 per day. Alright, very good. So if there are 55 people staying in the hotel today, so what is the maximum possible revenue for the room occupancy charged today? So the total number of rooms is 25, okay, and on that particular day we have 55 people staying in that room. So what can be the maximum revenue that can be generated? So how to do this question? So suppose I'm assuming let there are 3 varieties of room. Okay, room A in which there are only 1 people staying. Okay, I'm assuming there are 3 varieties. A in which there are only 1 occupancy, the B in which there are 2 occupancy, and C in which there are 3 occupancy. Basically there are 3 types of room, A, B and C. Okay, any room can have any number of people. There is no restriction. I've just assumed. Suppose A is the type of room where only 1 people is currently staying, B is the type of room where 2 people are staying, and C is the type of room where 3 people are staying. So if you'll add A, B and C, if I'll be adding all the 3, A plus B plus C, okay, if I'll be adding all, so it must be equals to the total number of rooms. Okay, A plus B plus C will be equals to the total number of room 25. Okay. Also, if I'll see, so in A is a type of room where only 1 person is staying. So total how many guests will be there? In A, every room there is 1 people. So in A type of room there will be total A guests, A into 1. Okay, there are A such rooms where 1 people are staying. Okay, so how many total number of guests will be A? Similarly, in B type of room, in every room there are 2 people staying. So what will be the total count of the guest? The total count of guest will be what? It will be 2B. Similarly, what will be the total count of guests who are staying in the type C room, which is 3C. And if I'll be adding all the number of guests, okay, it should be equals to what? It should be equals to 55. So I have this equation A plus B plus C, which is 25, and A plus 2B plus 3C, that's 55. Let's subtract second from 1. Means if we'll be subtracting it, so it's A plus 2B plus 3C equals to 55. Okay, from this let's subtract this. So it's minus A minus B minus C equals to minus 25. So what will be the answer? So A and A will be cancelled. So we'll have 2B minus B, which is B, plus 3 minus, so it will be plus 2C, and that is equals to 30. So here we have an equation. B plus 2C will be what? It will be equals to 30. Okay, B plus 2C equals to 30. Now see, this is an even number, right? Twice of C is an even number. So if this is an even number, B should also be an even number, because only sum of even and even will give you a 30 even answer. अगर ये आंसर इवन है और ये तो डेफिनेटली इवन है, इसका मतलब B भी क्या होगा? इवन होगा. Okay, so the value B can have will be what? It will be any even number, and such that कि B plus 2C हमेशा मिलाकर 30 होना चाहिए. So what is the minimum value B can have? और अगर आप देखोगे, so what are the different values B can have? So I'm simply saying कि what can be the minimum values or what can be values B and C can have.
तो b कैन बी 0, ठीक है। b, अगर b 0 है, so what will be the count of c? It will be 15. And if the count of c is 15, okay, what will be the count of a? Because the total count of a plus b plus c should be 25. a plus b plus c 25 होना चाहिए, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? If the value of b is 0, okay, c will be 15 and it will be 25. Similarly, if the value of b is 2, if the value of b is 2, so what will be the value of c? It will be 14. So 14 plus 2, 14 plus 2 is what? It is 16. 16 में क्या ऐड करेंगे? It should be 9. ठीक है। Next, what can be the value of b? We can have 4. If the value is 4, okay, it will be what? It will be 16. It will be 4. So it will be 13, right? और इसकी वैल्यू भी 1 से कम हो जाएगी, it will be 8. ठीक है। Similarly, the next value can be 6. It will be 12, and it will be what? It will be 7. ठीक है। So up to what the values will go? ये 0, 2, 4, 6 होगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम व्हाट इट कैन बी, अगर आप ऐसे ही चलते जाओगे, हमें ये भी ध्यान रखना है कि b plus 2c 30 होना चाहिए। सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू b कैन हैव? b कैन हैव 14, ठीक है। ये कब तक जाएगा? अप टू 14। अगर b की वैल्यू 14 है, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ b इज 14, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c? देन इन दैट केस इट विल बी 1, ठीक है। अगर ये 14 प्लस 1 ये हो गया 15, तो ये कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अगर इससे पहले वाला मैं काउंट लिखूं, तो इससे पहले वाला काउंट क्या हो जाएगा? जस्ट अ क्रॉस चेक। अगर b अगर 14 है, ठीक है, सो दिस विल बी 14, दिस विल बी 1, 14 is 28, okay, plus 1 which is 15, and that will be what? It will be 10, ठीक है। अगर इससे पहले वाले में मैं लिखूं, एक काम करता हूं, सारे लिखता हूं। वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं सारे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अगर ये 4 है, ये 6 है और ये 12 है, इसके बाद क्या होगा? इट विल बी 8, ठीक है। अगर ये 8 है, if the value of b is 8, so what it will be? It will be 11. 11 plus 8 is 19. अगर ये 19 हो गया, ठीक है, so what will be the value of it? 11 plus 8 is 19, so it will be what? Oh sorry, I made a mistake, sorry. So 8 plus 11 is 19, तो 19 अगर ये है, so it will be what? It will be 6, ठीक है। Then what are the different possible values? अब मैं इसको डायरेक्टली, ये बस पैटर्न देखकर मैं लिख रहा हूं। It will be 5, ठीक है, it will be 10, and it will be 10. Next, it will be 4, it will be 12, and it will be 9, ठीक है, and so on it will go, ठीक है। And what can be the maximum value b can have? अगर ये 4 हो गया, नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा? It will be 3, ठीक है, it will be 14, and it will be what? It will be 8. Next, it can be 3 के बाद ये क्या हो सकता है? 3 के बाद it will be 2, it will be 16, and it will be 7, it will be 1, it will be 18, and it will be 6, ठीक है, it will be 0, it will be 20, and it will be 9, ठीक है। अब ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, नंबर ऑफ रूम्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। ए बी सी के मैंने सारे वैल्यूज लिख लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी डी कैन हैव, ठीक है। आई हैव दिस एक्सप्रेशन, और उसके अकॉर्डिंग मैंने ए बी सी के सारे वैल्यूज लिख लिए। नाउ वंस आई हैव द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, तो पहले देखते हैं कि मैक्सिमम कब मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फर्स्ट केस। इन फर्स्ट केस ए टाइप का रूम है, वो कितना है? 10 है, तो टोटल कितना पैसा जनरेट हो जाएगा? द टोटल मनी जनरेटेड विल बी व्हाट? इट विल बी 10 into 2000, ठीक है, प्लस देखो बी में तो एक भी नहीं है, एंड 15 into 3.5 और 3500। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो रहा है देख लेते एक बार। सो दिस विल बी 2000, सो दिस इज 20,000, दिस इज 15 into 350, सो ये 5250, और इसमें 20,000 ऐड कर देते हैं, सो इट इज 7250, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग रूम को दोगे, ए पीपल 10, मतलब ए 1 ऑक्यूपेंसी 10 है, 2 ऑक्यूपेंसी 0 है, और 3 ऑक्यूपेंसी 15 है, तो 7250 रुपीज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है।
अगर मान लो मैं सेकेंड वैल्यू देता हूं, तो सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9 इंटू 2000, ठीक है, दिस इज 2, सो इट विल बी प्लस 2 इंटू 2000, सॉरी 2 इंटू 3000, प्लस इट विल बी 14 इंटू 3500, ठीक है। अगर इस वैल्यू को ऐड करें तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो सबसे पहले 14 इंटू 3500 है, 14, जस्ट अ मिनट, 14 इंटू 3500, 14 into 3500, it's 4900. 14 into 3500, it's 4900. ठीक है, this is 4900. Then this will be 6000 and this will be 18,000. So if I'll be adding, यानी 24,000 इसमें add कर दूं, so this is coming as 73,000. ठीक है, मतलब देखो जब ये ऑक्यूपेंसी हो रहा है, दिस इज 7250, अगर मैंने ये एक स्टेप आगे बढ़ गया, सो इट इज 7300. सिमिलरली जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 7300, 500, सॉरी 7000 एंड 73,500. तो अगर आप देखोगे ना, तो ग्रेजुअली इसकी वैल्यू ना ऐसे इंक्रीज होती जा रही है, ग्रेजुअली जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज होती जा रही है, यानी जो मैक्सिमम रेवेन्यू मुझे मिलेगा वो किस में मिलेगा, लास्ट केस में. सो लास्ट केस में क्या है, आई हैव 20 रूम्स, ठीक है, जो कि डबल ऑक्यूपेंसी वाली है. तो डबल ऑक्यूपेंसी वाली का 20 रूम्स है, तो टोटल कितना मनी जनरेट हो जाएगा, इट विल बी 20 इंटू 3000 प्लस 5 वाली कितनी है, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी 5 इंटू 3500. तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया 20 इंटू 3 यानी 60,000 हो गया, प्लस 350 इंटू वी हैव 5, so 17,500 plus 16,500. तो अगर आप इसे ऐड करोगे, so it is what it is 7,700 and sorry 77,500. So this will be the maximum revenue which you can generate. तो इस क्वेश्चन में मैंने देखो, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने पहले देखा कि अच्छा आई हैव दिस इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, मैंने ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट आई एम गेटिंग b plus 2c is nothing but it is 30. तो अगर ये इवन है और ये इवन है तो डेफिनेटली बी इवन होगा. तो मैंने सारे वैल्यूज लिख लिए, फिर मैंने क्या किया, आई एम जस्ट चेकिंग द वैल्यूज ऑफ फॉर ईच. जब मैंने ये वाला केस अज्यूम किया, द मनी आई एम गेटिंग इज 72,500, सर, ठीक है. जब मैंने ये वाला केस अज्यूम किया, इट इज 72,500. फिर जब मैंने ये वाला केस अज्यूम किया, इट इज 73,000. जब आप ये केस अज्यूम करोगे, आप देखोगे इट इज 73,500. यानी ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो एवरी टाइम 500 रुपीज इज इंक्रीजिंग. सो एज इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा वो कब मिलेगा, व्हेन द केस इज दिस और व्हेन द ऑक्यूपेंसी इज इन दिस मैनर. ठीक है, सिंगल रूम में देयर इज नो रेसिडेंट, कोई भी गेस्ट नहीं है. डबल ऑक्यूपेंसी, देयर आर 20 रूम्स इन विच डबल ऑक्यूपेंसी इज देयर एंड देयर आर 5 रूम्स इन विच 3 occupancies are there. So in this case you will be getting a maximum revenue and the maximum revenue will be what, it will be 77,500. Alright, so this is the first question. So I believe first question sabhi ko samajh mein aa gaya hoga. Let's do the second question. Now what the second question says that the market value of beams made of rare material has a unique property, and what that property is, it says that the market value of any such beam is proportional to the square of its length. Means the price of the beam is what, it is proportional to square of the length. Whatever your price is, okay, the price will be proportional to square of the length. If the length is more, you'll have more power, more value of the price. If the length is less, you'll be having less value of the price. Next, due to an accident, one such beam got broken into 2 pieces having the lengths in the ratio 4:9. So initially we had a beam, okay, and because of an accident, now this beam has been splitted into 2 parts in the ratio of 4:9. So if the ratio is 4:9, so in general we can say it is 4x of length and it will be 9x of length. Considering each broken piece as a separate beam now, how much gain or loss with respect to the market value of the original beam before the accident is incurred? Okay, so now we have, this is my first beam and this is my second beam. So initially जब ये बीम टूटा नहीं होगा, ठीक है, अगर ये बीम ब्रेक नहीं किया होगा तो टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी, 13x. So if the total length is 13x, what would have been the original price? The original price would have been, it should have been
k, where I'm just using k as constant. Okay, k is any constant, कुछ भी हो सकता है k की वैल्यू, k is simply an constant. तो अगर ये बीम टूटा हुआ नहीं होता तो इसकी कंप्लीट लेंथ क्या होती? 13x. So the price must have been what? It will be 13 का square. It will be 169x square. K times of 169x square. If the beam had not been broken. Now since the beam has been broken, okay, so what will be the price of the first piece? So if the price of the first piece will be what? It will be k times of square of the length, so it will be 16x square. Similarly, what will be the price of the second beam? It will be again k times of, it's again k times of 81x square. So originally the price was something 169. अगर आप ये सारे कांस्टेंट्स वाले पार्ट को ये कर लोगे तो आपका ओरिजिनल प्राइस क्या था? 169 यूनिट्स. लेकिन अब प्राइस क्या है? 16 प्लस 81, यानी अभी मैं प्राइस बोल सकता हूं कितना हो रहा है? 81 प्लस 6 यानी 7 और 8 प्लस 1 यानी 97x स्क्वायर. k टाइम्स ऑफ 97x स्क्वायर. ओरिजिनली द प्राइस वाज दिस एंड नाउ द प्राइस इज दिस. तो आपको कितने का लॉस हुआ है? सो टोटल अगर आप देखोगे तो 72 यूनिट से प्राइस जो है वो डिक्लाइन हो गया. वॉट एवर वॉज द ओरिजिनल प्राइस, 72 यूनिट से प्राइस डिक्लाइन हो गया है. तो हमें चाहिए क्या? हमें देखना है ठीक है, हाउ मच गेन और लॉस विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू इज k टाइम्स ऑफ 169x स्क्वायर. और अब कितने का लॉस हो गया? इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे, द लॉस विल बी ऑफ 72x स्क्वायर यूनिट्स. इन ऑर्डर टू गेट द परसेंटेज सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये x स्क्वायर और k और ये x स्क्वायर और ये k तो कैंसिल हो जाएगा. सो अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? सब सिंपली डिवाइड 72 बाय 169. सो व्हेन यू विल बी डिवाइडिंग 72 अपॉन 169, द आंसर विल बी गेटिंग विल बी व्हाट? इट विल बी 42.6%. Okay, so for question number 2, answer will be what? It will be 42.60%. Okay, so this was a very easy question. I believe आप सभी ने ये question जरूर किया होगा. Alright, so let's move toward the next question of the day. Now the next question is question number 3. Now what this question suggests, now whenever a question of coordinate comes now, I personally prefer to locate the point in Cartesian plane. इससे ना बहुत हेल्प होता है. आप कभी भी आपको कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन मिले ना, कार्टेशियन प्लेन को यूज करो, you'll definitely help a lot. So it says that ABCD is a rectangle, okay, where the coordinates of C and D are -2, 0 and 2, 0. तो अगर मान लो मैंने ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ठीक है. So one of the coordinate is -2, 0. So -2, 0 is somewhere here, ठीक है, and other one is 2, 0. Somewhere it will be here. So this is point C and this is point D. So ABCD is a rectangle. So now the rectangle can be, so I can have two types of rectangle. एक तो मेरा rectangle ये हो सकता है, ठीक है, और my rectangle can be this. Let me use another pen. मेरे पास दूसरा कलर भी अवेलेबल है ना. देखो ABCD is a rectangle, so either you can say that okay, this is A, this is B, this is C and this is D, or you can say that no, this is A, this is B, this is C and this is D. So ये rectangle हो सकता है या ये rectangle हो सकता है. Next, if the area of the rectangle is 24, okay, now wonderful, it says that the area of the rectangle is 24. अब ये देखो, ये -2, 0 से 2, 0 है. अगर आपने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया ना तो आपको एक चीज हो जाता है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो. अच्छा, यहां से यहां 2 यूनिट्स का गैप है, यहां से यहां 2 यूनिट्स का, यानी ये जो CD की लेंथ होगी वो क्या होगी? 4 यूनिट्स. अगर आप कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट नहीं करोगे तो आपको क्या करना है? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. देन आल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बट शायद एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो C से D का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट्स. अगर ये 4 यूनिट्स है और इस कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया 24 है, इसका मतलब AD की लेंथ क्या होनी चाहिए? AD यानी ये 6 यूनिट्स होना चाहिए या तो ये 60 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है. यानी अगर मुझे ये पॉइंट प्लॉट करना है तो ये पॉइंट प्लॉट किया, ये ओरिजिन से 6 डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी दिस शुड बी 6, 0 और इट शुड बी -6, 0, ठीक है. नेक्स्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द लाइन AB. तो लाइन AB है, सो लाइन AB या तो 6, 0 से पास करा है या तो -6, 0 से पास करा है. यानी या तो आप बोल सकते हो कि या आपका ये जो लाइन का इक्वेशन, या तो आप ये बोल सकते हो y = 6,
ठीक है, और यू कैन से दैट नो y इज इक्वल्स टू -6. अब दोनों में से जो भी ऑप्शन में है दैट विल बी माय आंसर. सो आंसर में क्या है, y इज इक्वल्स टू 6. ओके, सो आंसर टू द क्वेश्चन विल बी व्हाट, ओके, y इज इक्वल्स टू 6. आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा सभी को. इट्स अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स रीड इट एंड लेट्स ट्राई टू डू इट. व्हाट इट सेज, ये क्या बोल रहा है, अदू एंड अमू, ठीक है, आदि मानव जैसे नाम लग रहा है. अदू एंड अमू हैव बॉट 2 pieces of land on the moon, ठीक है, फ्रॉम एन ई स्टोर. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज ऑफ फ्यूचर वर्जन, ठीक है, फ्यूचर में आप भी ऐसे ही क्या कर सकते हो, ई स्टोर से प्लॉट खरीद सकते हो. Both the pieces of land have the same perimeters. Okay. Now this is a very important point. Ki both the lands have the same perimeters. The land which is bought by Adu and Amu have same perimeters. But Adu's piece of land is in a shape of square. Okay. So Adu ka jo hai, it's a piece, it's a land in a shape of square. So this is of Adu. Okay. और जो Amu का piece of land है, that is in a shape of a circle. But interesting part is both are having the same perimeters. The ratio of the area of Adu's piece of land to Amu's piece of land is okay. Now, if the perimeter is same, सबसे पहले सपोज अगर मान लो मैंने माना चलो ये इसकी रेडियस r है, ठीक है, और इसका जो साइड है वो a है. So first of all, let's establish a relation between a and r. So what will be the perimeter of it? Perimeter के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. कितना भी कॉम्प्लेक्स फिगर हो, ठीक है, फॉर perimeter there is no requirement of any formula. Simply add all the edges. Perimeter के लिए कभी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है. जितने भी एजेस हैं आप उसे ऐड करो. तो अगर आप देखोगे तो a बिकॉज इट्स अ पीस, इट्स अ स्क्वायर शेप, सो पेरीमीटर विल बी व्हाट, इट विल बी 4a एंड दिस शुड बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 pi r. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन से दैट a इज नथिंग बट इट इज pi r by 2. ठीक है, a इज व्हाट, a इज pi r by 2. So now we have a relation between a and r. Now what we have to get, the ratio of areas of Adu's. So Adu's piece of land is a square. So a square. So it will be what? Simply a square इसका whole square हो जाएगा. So it will be pi square r square upon 4. ठीक है. And the land of Amu. Amu का land क्या है? Circle है. So area of that will be pi r square. तो ये r square cancel हो जाएगा. ये pi और ये cancel हो जाएगा. So ultimately what I'll have? We'll have pi is to 4. Again, a very basic question. ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आपको शायद ही मेंसुरेशन में कभी देखने को मिलेगा. सो दिस वाज अ वेरी डुएबल क्वेश्चन. ठीक है, किसी भी दिन आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो. मतलब कोई परेशानी नहीं है, एकदम कोई सिंपल सा ही बच्चा होगा, बहुत ही एवरेज होगा मैथ में, तब भी वो क्वेश्चन कर सकता था. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज Ramesh bought a mobile from a local store. Very good. He paid 1/6 of the price via UPI, 1/3 of the price via cash. देखो यूपीआई के बारे में ना एक अच्छी चीज है कि यूपीआई बहुत हैंडी है, और मोदी गवर्नमेंट ने एक काम जो बहुत अच्छा किया है, बाकी तो उसने बंटाधारी कर रखा है, लेकिन एक काम जो एप्रिशिएबल है वही है कि उन्होंने यूपीआई इंडिकेट किया. आप ना रियली एकदम टेंशन फ्री होके, मतलब कैश है नहीं है, आप टेंशन फ्री होके घूम सकते हो. So he paid 1/6 of the price via UPI and 1/3 of the price via cash. ठीक है, he agreed to pay the balance amount a year later. While paying back the balance amount, Ramesh paid 10% interest on the balance amount. If the interest paid was rupees 6,000, what was the original price of the mobile? Now, since I have to get 1/6 and 1/3 of the price, ठीक है, मुझे क्या करना है, जो भी प्राइस होगा उसका 1/6 निकालना है, 1/3 निकालना है. सो व्हाट आई डू, आई अज्यूम अ प्राइस इन सच अ मैनर. देखो आप x भी अज्यूम कर सकते हो, लेट द प्राइस इज x, लेकिन उससे होगा क्या, जब आप 1/6 निकालोगे आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर 1/3 निकालोगे, अगेन इट विल बी फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा टिपिकल है. टिपिकल है तो थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होगा. तो हमेशा कोशिश करो कि फ्रैक्शंस को आप अवॉइड करो. It will be much better if you'll be avoiding the fractions. So how to avoid it? So instead of assuming x as my price, let's assume that the price is what, 6 और 3 का LCM क्या होगा, it will be 12x. Okay, so let the price of the mobile is what, it is 12x. ठीक है, instead of x I have simply assumed okay it is x. Now what he has done,
So he paid 1/6 of the price. So what will be 1/6 of 12x? So 1/6 of 12x is what? It's 2x. So out of 12x, okay, he has paid 2x. Out of 12x, he has paid 2x in through UPI. Very good. 1/3 by Visa, by cash, ठीक है. So 1/3 of 12x, that will be 4x. तो ये जो है उसका 4x of the cash, 4x of the amount has been paid in cash. So how much is left? 2x उसने ऐसे पे कर दिया, 4x उसने कैश में पे कर दिया, यानी 6x of the amount is left. ठीक है, 6x is the amount is left. So the remaining amount is 6x. So he agreed to pay the balance amount a year later. While paying back the balance amount, Ramesh paid 10% interest. और जो इंटरेस्ट का वैल्यू है दैट इज 6000. सो कैन वी से दैट 10% ऑफ 6x, बिकॉज 6x इज द ओनली रिमेनिंग अमाउंट ना. 10% ऑफ 6x इज नथिंग बट इट इज 6000. आराम से इसे सॉल्व करो. ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जब भी देखो, जब भी परसेंट का सिंबल दिखे, ये हमेशा 1/100. ऑफ का मतलब इनटू, ये 6x इक्वल्स टू 6000. तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. x की वैल्यू कितनी है? 1000 और एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा, यानी 10000. सो इफ द वैल्यू ऑफ x इज 10000, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ द मोबाइल? इट विल बी 12000. ठीक है, इसको सिंपली 12 इंटू 10,000 कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा? 120,000. दिस विल बी द आंसर. Simply replace the value of x by 10,000. So 12 into 10,000, it will be 120,000. Okay, so correct answer. Again, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर से. अगर आपने थोड़ा बहुत भी परसेंटेज अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन को करने में आई डोंट थिंक कुछ भी परेशानी आई होगी ऐसा. ठीक है, तो अभी तक देखो, अभी तक हमने जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन देखे, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को साइड कर दूं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 चैलेंजिंग था. ठीक है, रियल एग्जाम में उतना सोचना, ये कैलकुलेट करना, वो करना, ये थोड़ा फीजिबल नहीं है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, बाकी के 4 क्वेश्चंस तो डुएबल थे. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन L1 has the equation y equals to k times of x minus 1 where k is some real number. Very good. The straight line L1 intersects another straight line L2 at point 5,8. यानी ये जो लाइंस L1 और L2 है, सपोज ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, they are intersecting each other at the point 5,8. Yani both the lines are passing from 5 and 8. If L2 has a slope 1, okay, which of the following is definitely false? So first of all, अगर L2 का आपके पास slope है, so can we say that in general L2 का जो equation होगा that will be, देखो, L2 will be y equals to mx plus c. I'm simply using the equation form, slope intercept form, y equals to mx plus c. I know that slope of the line is what? It is 1. So it will be what? Y equals to x plus c. Okay, if I'll keep the value of m as 1, so I'll get y equals to x plus c. तो मेरे पास एक लाइन है y equals to x plus c. Now this line L2 is passing from 5,8. तो अगर ये 5,8 से पास कर रहा है, so ये 5 और 8 इसको satisfy करना चाहिए. So when we'll be replacing y by 8 and x by 5, ठीक है, so you'll have the value of c which is this will give me c is nothing but it is 3. तो अगर c 3 है, इसका मतलब जो y2 लाइन है उसका इक्वेशन क्या हो गया? सॉरी, L2 लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? L2 is y equals to x plus 3. ठीक है, तो ये लाइन L2 का इक्वेशन हो गया. सिमिलरली L1 का इक्वेशन तो हमारे पास है y equals to k times of x minus 1. इसमें जस्ट अगेन x और y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ k. सो इट विल गिव अस 8 equals to k times of x is 5. So 5 minus 1 is 4. Simplifying it, this implies k is equals to 2. So what will be the equation of line L1? L1 will be y equals to 2k minus 2. ठीक है, y is 2k minus 2, y equals to x plus 3. अब मुझे ना इंटरसेप्ट फॉर्म में डील करना है, तो लेट्स कन्वर्ट इट इन द इंटरसेप्ट फॉर्म. तो अगर आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे, द लाइन L2 कैन बी रिटन एज, ठीक है, आई एम सिंपली राइटिंग इट इन द इंटरसेप्ट फॉर्म.
सो इट विल बी y/3 minus x/3 इक्वल्स टू 1. ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3. हाँ, सो L2 का इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया. उसी तरह L1 का इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं. सो L1 का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? इट विल बी y माइनस 2. ठीक है, y माइनस 2. इट्स 2k माइनस 2 नहीं, ये 2x माइनस 2 है. टू एक्स माइनस 2. ठीक है, अगर इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये 2x इधर गया तो -2x और ये -2 यानी प्लस x/1 इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो बोथ द लाइंस आई हैव रिटन इन इंटरसेप्ट फॉर्म. L2 का y इंटरसेप्ट है 3, L1 का y इंटरसेप्ट है -2. नेक्स्ट L2 का x इंटरसेप्ट है -3 और L1 का है 1. नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा हमें ये देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स. The distance between the y-intercept of the two lines is 6. इसका y-intercept कितना है 3 और इसका y-intercept कितना है -2. तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा? 3 माइनस -2 विल बी व्हाट? अगर आप इनका गैप निकालोगे ये क्या होगा? 3 माइनस -2, ये तो 5 आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोला ये 6 है. सो डेफिनेटली ये रॉन्ग है. तो मेरा आंसर तो ये हो गया. ठीक है, डेफिनेटली ये रॉन्ग है क्योंकि हमारा 5 आ रहा है, इनका 6 आ रहा है, ये तो आंसर नहीं हो सकता. दूसरा देख लेते हैं. डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत होगी, रुक जाते हैं. द लाइन L1 पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0. तो यहां 1, 0 प्लेस करके देखते हैं. L1 में 1, 0 देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है नहीं. अगर आप ये y की वैल्यू 1 डालो, सॉरी x की वैल्यू 1 डालो तो क्या y 0 होता है? तो ये 2 into 1 विल बी 2 minus 2, सो y 0 है. अगर आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो y 0 हो रहा है, यानी ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी ऑप्शन 3 जो है दैट इज करेक्ट. ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. The distance between x intercepts, ठीक है, is 4. यहां पर x intercept -3 है, यहां पर x intercept 1 है, तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? It will be 1 minus -3, that will be 4. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अगेन. और इन दोनों में डिस्टेंस चाहिए. तो डिस्टेंस के लिए क्या होता है? जैसे अगर मान लो अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, वेरी गुड. नहीं पता तो एक बार देख लो. अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और आपका इसका डिस्टेंस सपोज फाइंड आउट करना है पॉइंट x1, y1 से. x1, y1 से ax प्लस by प्लस c का डिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपली कुछ खास नहीं करना है, रिप्लेस x बाय x1 एंड y1 बाय y. तो अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c. ठीक है, एंड द होल विल बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिंपली ये डिस्टेंस और दिस विल बी इनसाइड द मॉडल. तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप आराम से डिस्टेंस निकाल लेते हो. तो पहला डिस्टेंस निकालते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन टू वन ऑफ द लाइन इज 3√2. ठीक है, ओरिजिन से किसी एक लाइन पे जो डिस्टेंस है वो 3√2 है. सपोज L2 का डिस्टेंस निकालते हैं. ठीक है, तो x1 y1 की वैल्यू क्या है? 0, 0. तो यहां पर अगर आप 0 प्लेस करोगे तो ये 0, मान लो ये इक्वेशन में प्लेस कर दो, किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो. ठीक है, तो ये 0 और ये 0, तो बचेगा क्या? सिर्फ 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. अगर आप इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ये लाइन को अगर मैं जनरल फॉर्म में इक्वेट करूं, जैसे ये क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस लाइन का मुझे क्या करना है? इस लाइन का मुझे डिस्टेंस निकालना है 0, 0 से. तो इसकी कोफिशिएंट क्या है? 1, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1. लेकिन सिंस ये 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, फिर प्लस 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, फिर ये -3 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? इसका कोफिशिएंट a स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 अंडर रूट. और सिंस ये सारा का सारा मॉड में होता है तो दिस विल बी 3√2. सो 3√2 1 है. सो डेफिनेटली अगर ये फॉल्स है तो ये भी आपका आ ही जाएगा. आप ये फॉर्मूला यूज करना, आपको ये भी मिल जाएगा. So for question number 6 the correct answer will be what? It will be option 1. ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, यू वांट टू बी गेट अ कंफर्मेशन कि हाँ ऑप्शन 1 ही आंसर है, तो इट्स अ लेंथी. लेकिन अगर मान लो इन्होंने ऑप्शन जैसे दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन ही देखा, मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही देखा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ द टाइम.
तो ये डिपेंड करता है कि आप खुद के प्रोसेस पे कितने कॉन्फिडेंट है, खुद के नॉलेज पे कितने कॉन्फिडेंट है। अगर आप खुद के नॉलेज पे बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे ना, ठीक है, कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो एकदम परफेक्ट पढ़ा है, मैंने ऐसे मेहनत नहीं की है, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, सो वॉट एवर आई हैव लर्न, ठीक है, दैट इज एक्यूरेट एंड 100% करेक्ट। ओके, सो मैं सिर्फ स्टेटमेंट वन पढ़ता देखता, अच्छा स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, आई वुड हैव मार्क्ड इट एंड आई वुड हैव नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या आप एक ये भी कर सकते थे कि आपने ये क्वेश्चन को मार्क किया, मार्क फॉर रिव्यू करते, ठीक है, हमने फर्स्ट ऑप्शन तो देख लिया, फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट, रिव्यू कर लिया, मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया। अगर ये ऑप्शन मान लो बाद में देखता, अगर टाइम बचता तो बाकी के ऑप्शन देख लेता, अगर नहीं बचता तो मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो तो कंसिडर हो गई। सो बोथ वेज, ठीक है, आप कैसे अप्रोच लेते हो एग्जाम में यही मैटर करता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 द आंसर इज व्हाट, इट्स ऑप्शन 1। ओके, एक्सेप्ट ऑप्शन 1 ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ व्हाट आई हैव सीन कि एग्जैक्ट का जो एग्जाम होता है ना उसमें पजल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन कोई ऐसा चैप्टर से नहीं है कि अरे मैंने ये चैप्टर नहीं किया तो मैं क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा, दिस इज काइंड ऑफ पजल, ठीक है। सिंपली आप देखो क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड डेफिनेटली वन कैन डू दिस क्वेश्चन। सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, इन अ कंप्यूटर गेम ईच मूव रिक्वायर्स प्रेसिंग अ बटन, ठीक है। When the button is pressed for the first time as a move, the computer randomly choose a cell from a 4x4 grid of 16 cells, ठीक है। सो टोटल हमारे पास 4x4 के एक ग्रिड है, okay, so we have a grid like structure, okay, of 4x4. Next, so what this machines does or what this games does, ठीक है, suppose you are pressing a button, for example suppose I am pressing enter, as soon as I'll be pressing an enter, ठीक है, a cell will be selected, okay, and that on that cell x marks will become randomly। ये जो मशीन है वो कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकता है, ऐसा कोई ये नहीं कि ये सेल चुनेगा ये सेल चुनेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, इट कैन सेलेक्ट एनी सेल रैंडमली, ठीक है, एंड इट विल मार्क एक्स ऑन इट। When the button is pressed subsequently, the computer randomly chooses a cell from the remaining unmarked cells and puts an X mark on that cell. This goes on till the end of the game. The game ends when either all the cells in any row or all the cells in any column is marked with X. ठीक है, तो ये गेम कब एंड होगा, अगर मान लो ये सारे के सारे रो में एक्स हो गए, या इस रो में एक्स हो गए, या इस कॉलम में, ठीक है, इन एनी ऑफ द कॉलम इफ ऑल द सेल्स आर फिल्ड विद एक्स, ठीक है, और इफ एनी ऑफ द रो ऑल द सेल्स आर फिल्ड विद एक्स, द गेम इज ओवर। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टाइम्स अ प्लेयर हैज टू प्रेस द बटन टू फिनिश द गेम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम आपको कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा कि डेफिनेटली आपका गेम ओवर हो जाए, ठीक है। सो एज वी हैव टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कि मैक्सिमम मुझे कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले ना ऐसे ऑप्शंस रखूं जिससे चांस ही ना हो कि मैं कभी जीतूं, एकदम दूर दूर, ठीक है। लेट्स ट्राई टू कंसिडर एकदम मतलब जो सबसे वर्स्ट कंडीशन सिनेरियो हो सकता है। तो एक रो सेलेक्ट किया, ठीक है, अब ये रो सेलेक्ट ही नहीं करूंगा, या ये कॉलम सेलेक्ट ही नहीं करूंगा, दूसरे रो दूसरे कॉलम में आ जाता हूं, फिर इसमें आ जाता हूं, फिर इसमें आ जाता हूं, ठीक है, कोई चांस ही नहीं कि एक रो एक कॉलम है। फिर क्या हो सकता है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट मूव में ये सेलेक्ट होगा, नेक्स्ट मूव में ये सेलेक्ट होगा। तो अभी तक टोटल हमने कितने मूव्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मूव्स हैव बीन डन, ठीक है, और स्टिल नाउ द गेम इज नॉट ओवर, आई एम टेकिंग द मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट मान लो रैंडमली मैंने ये वाला कंप्यूटर ने ये चुना, ठीक है, ऑन द 9th मूव ये चुना, अब अगर 10th मूव में मैं ये करूंगा तो खत्म हो जाएगा, मुझे एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो लेना है। मान लो 10th में ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, ऑन द 10th मूव ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, मुझे गेम को एज लॉन्ग एज ये खींचना है, बस उसको एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एक यहां पर मार्क कर देते हैं, तो 11th में हम यहां पर आ गए, ठीक है, 12th में एक काम करते हैं, यहां पर आ जाते हैं, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चल रहा हूं। अब मुझे 13th मार्क करना है, 13th के लिए मैं अगर यहां मार्क करूं, यहां मार्क करूं, यहां मार्क करूं, यहां मार्क करूं, वट एवर इज लेफ्ट, कहीं भी अगर आप मार्क करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ऑन द 13th मूव आपका जो गेम है वो ओवर हो जाएगा। सो मैक्सिमम यू कैन टेक, यूल बी नीडिंग ओनली 13 स्टेप। एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो भी अगर आप लोगे तो 13 स्टेप्स में आपका जो गेम है वो क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 द आंसर इज व्हाट, इट इज 13, ठीक है। अब
अब किसी ने बोल दिया कि सर मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। और आप अगर आप एक क्वेश्चन भी करेक्ट करते तो आपकी रैंक बहुत ऊपर हो जाती, बहुत लोगों से बहुत आगे हो जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? इट्स 30। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज, if a, b and c are all positive integers, very good, a, b, c are all positive integers where with 4a is greater than b, then which of the following condition is both necessary and sufficient for the expression to be positive integer. मतलब ऐसा क्या कंडीशन है इनमें से जो नेसेसरी है और सफिशिएंट है? सिर्फ सफिशिएंट होने से बात नहीं होगी, नेसेसरी होना चाहिए, यानी अगर वो नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होगा, तो नेसेसरी होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सिंप्लीफाई दिस. तो ये तो 3 की पावर a है. 21 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 3. ओके, 21 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 3. सो 7 की ये पूरी पावर और 3 की ये पूरी पावर. तो अगर आप देखोगे तो 3 की पावर यहां पर है और 3 की पावर यहां पर है, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो विल हैव 3 टू द पावर ऑफ a प्लस दिस पावर विल बी एडेड. बोलोगे सर कैसे? जैसे आप ये करते हो 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3, राइट? आप क्या करोगे? विल इट बी 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3? सेम थिंग, 3 इंटू 3 इज मल्टीप्लाई. तो यहां पर 3 की पावर a है, यहां पर 3 की पावर 3a माइनस b है. सो इट विल बी 3a प्लस 3a माइनस b इंटू 7 की अगर आप पावर देखोगे तो यहां पर 7 की पावर क्या है? हियर द 7th पावर इज 3a माइनस b, 3a माइनस b. ओके, और यहां पर ये 7 का स्क्वायर है, तो पावर पर पावर है, यानी ऐसा है 7 स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 2b प्लस c. सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर ऑफ 4b प्लस 2c. अगर पावर्स पर पावर होता है तो वी सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है. सो इट विल बी 3a माइनस b प्लस 4b प्लस 2c, और ये पूरे के पूरे पर क्या पावर चढ़ा हुआ है? 1/3, ठीक है. क्यूबिक रूट है ना, तो 1/3 पावर है. अब वी कैन से दैट ओके दिस विल बी 3a, यानी और वी कैन राइट इट लाइक दिस. ओके, दिस विल बी 4a माइनस b इंटू 7 टू द पावर ऑफ 3a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक है. क्यूबिक पावर है ना, तो ये यहां पर आ जाएगा. सो नाउ वी हैव टू वर्क ऑन अ कंडीशन सच दैट ये क्या हो जाए? ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. तो पॉजिटिव इंटीजर्स कब होगा? जब इसके पावर्स फ्रैक्शन नहीं होंगे, ठीक है. इसके जो पावर्स है अगर वो फ्रैक्शन ना हो, सो डेफिनेटली दैट विल बी एन इंटीजर. देखो, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये पॉजिटिव हमेशा होगा. आप 2 है, 2 पर कुछ भी पावर को, ठीक है, 2 रेज टू एनी पावर, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है. तो पॉजिटिव वाला टेंशन है नहीं, बस मुझे देखना है कि ये इंटीजर होना चाहिए. तो इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, द पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है. योर पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर, और वी कैन से द पावर शुड बी अ होल नंबर. 0 भी रहेगा तो चलेगा. तो मुझे इसे होल नंबर रखना है, मुझे इसे होल नंबर रखना है. तो अगर मैं इसे होल नंबर रखना चाहता हूं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. 4a माइनस 3b को ऐसे लिखते हैं जैसे, तो 3a प्लस a माइनस b बाई 3, ठीक है. सिर्फ पावर्स पे ध्यान है, इस पे तो कोई इनका तो कोई लोचा ही नहीं है. और यहां पर ये क्या हो जाएगा? अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो इट विल बी a प्लस b प्लस 2c डिवाइड बाई 3. सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस a माइनस b बाई 3, एंड दिस विल बी रिटन एज a प्लस b प्लस 2c बाई 3. अब आप बताओ, मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये कंडीशन आ रहा है. आई जस्ट वॉन्ट कि ये जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है. a प्लस a माइनस b बाई 3 एंड a प्लस b प्लस 2c बाई 3 है, वो नेचुरल नंबर हो. तो इनको नेचुरल नंबर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? अगर ये जो a माइनस b है, ठीक है, ये कुछ भी हो, बट इफ दिस a माइनस b इज एनी मल्टीपल ऑफ 3, अगर आपका ये जो a माइनस b है वो 3 का मल्टीपल हो जाए, और इन अदर सेंस इफ आई कैन से दैट ओके इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 3, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 0 हो गया, इन दैट केस द पावर विल बी अ नेचुरल नंबर.
सिमिलरली अगर ये आपका जो 2c है, ठीक है, अगर 2c 3 से डिवाइड हो जाए तो देखो 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, अगर किसी तरीके से c 3 से डिवाइड हो जाए तो ये भी नेचुरल नंबर हो जाएगा। यानी जो नेसेसरी कंडीशन है जो हमें देखना पड़ेगा वो ये है कि a माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड एट द सेम टाइम c शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो इनमें से जो नेसेसरी कंडीशन होगा दैट विल बी a माइनस बी एंड c आर डिविजिबल बाई 3। अगर ये होता है, ठीक है, सो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ऐसा क्वेश्चन ना पहले भी आपका जैट एग्जाम पूछ चुका है। आप अगर बोलोगे कि सर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन टाइप कंडीशन वाले क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं रीट्रेट करता हूं, आप जब भी प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, चाहे आपका ड्रीम कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको जैट जेवियर्स इंस्टीट्यूट में जाना ही नहीं है, फिर भी जैट के क्वेश्चन सॉल्व करो। इट माइट बी कि आपको जैट के क्वेश्चन एसआरसीसी के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इवन कैट के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो आई बिलीव आप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन वाज नॉट वेरी इजी, बट ऐसा बहुत भी चैलेंजिंग नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर रखा है तो आप ये क्वेश्चन को भी कर सकते थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम द चैप्टर्स ऑफ मेंसुरेशन, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। तो फर्स्ट राउंड में तो ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में अगर आप डेफिनेटली कर सकते थे। सो अ सॉलिड ट्रॉफी consisting of two parts has been designed in a following manner. The bottom part is a frustum of a cone with the bottom radius 30 centimeter and the top radius 20. The height is 40 while the top part is a hemisphere with radius 20 centimeter. तो हमारा जो ट्रॉफी है वो कुछ ऐसा है, एक तो फ्रस्टम है, ठीक है, एंड द टॉप पोर्शन इज अ हेमिस्फीयर। So in this manner the trophy is, okay, like a shuttle, ठीक है, जो शटल होता है ना बैडमिंटन शटल, उसकी तरह। Alright, so what are the dimensions? So it says that the dimensions are this one is 30, okay, this one is 20, the height is 40 and the radius of this is also 20. Next, moreover the flat surface of the hemisphere is same as the surface of the frustum, okay. If the entire trophy is to be gold plated at the cost of rupees 40 per square centimeter, then what would be the cost for gold plating it? Closest to, exact answer नहीं चाहिए, closest answer चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे ना एंटायर ये को पेंट करना है, ठीक है, मतलब गोल्ड प्लेटेड करना है, और जो कॉस्ट है दैट इज 40 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप देखो, सिंस ये सॉलिड ट्रॉफी है तो मुझे कौन सा सरफेस ये करना पड़ता है, बस बाहर बाहर का सरफेस, ठीक है, जो बाहर बाहर का सर्फेसेस है, यानी मैं कौन कौन से सर्फेसेस कंसीडर करूंगा। द सर्फेसेस टू बी कंसीडर्ड विल बी व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस, ठीक है, द बेस इज अ सर्कल, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 30, जो काम का डेटा है मैं वही लिख रहा हूं। देन आई हैव टू कंसीडर अ फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का क्या, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया, we have to see the curve surface area of the frustum, so curve surface of frustum, and मुझे क्या देखना है, we have to get curve surface area of a cone, of a क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये सारे वैल्यूज मुझे कंसीडर करना है, बिकॉज जो पेंटिंग होगी बार बार ही होगी ना, सॉलिड स्ट्रक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल, इट विल बी पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर एज द रेडियस इज 30, so 30 square is 9, so pi into 900 प्लस फ्रस्टम ऑफ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, ये क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, ऐसे तो कौन है तो पाई आर एल सिंस, लेकिन दो रेडियस है इसलिए दोनों रेडियस को एडजस्ट करना है, ठीक है। मैं सीएसए ऑफ अ फ्रस्टम लिख रहा हूं, सीएसए ऑफ अ फ्रस्टम विल बी पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, ठीक है। तो पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं, अगर आप इसे ऐसे कनेक्ट कर दो, सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये टोटल 30 है, यहाँ 20 है, सो दिस विल बी 10, दिस इज 40, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एल, सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल विल बी
अंडर रूट ऑफ 400, इट्स 1600 प्लस 100, यानी वी कैन से इट विल बी 10 रूट 17. ठीक है, एल की जो वैल्यू है वो 10 रूट 17 है. सो अगेन वी हैव अ पाई आर प्लस आर, सो 20 प्लस 30 इज 50. 50 इंटू 10 विल बी 500 इंटू रूट 17. ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो 2 पाई आर स्क्वायर रेडियस इज 20, सो इट विल बी पाई आर स्क्वायर 220 20 यानी 400 इंटू 2 विच इज 800. तो पाई तो कॉमन ले लो सबसे पहले. ठीक है, ये 900 800 ये हो गया 1700 प्लस ये 500. रूट 17 के अगर आप वैल्यू देखोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 4.1 के टाइप्स होता है. ठीक है, मान लेते हैं 4.2 है, अप्रोक्सीमेटली चाहिए ना और आंसर तो बहुत दूर दूर है, तो 4.2 रख लेता हूं. सो 4.2 इंटू 500 दिस इज 2100. सो 21 इंटू 17 कितना हो गया 38. सो 3800 इंटू पाई. Okay, just a minute. This is 900. Then we have to take the curved surface area of the frustum. So pi RL. ठीक है, this will be 2 pi r square. Complete का 4 pi r square. So this is 2 pi r square. So it's 1700 into 3800. ठीक है, so 38 into 3. If I just multiply it, so it will be 380 into 3.14. Just a minute, I think. Okay. So 38 into pi. Okay. So this much is your curve surface area, total curve surface area. So अब मुझे टोटल प्राइस चाहिए, तो टोटल प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर आप देखो सिंस आई हैव टू गेट एन अप्रोक्सीमेट आंसर, ये 40 इंटू 40 यानी नियरली 160 होगा. देखो ये 40 और ये 40. ठीक है, तो 1600 का टाइप होगा और ये नियरली 3 है. पाई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो नियरली 3 है, तो 16 इंटू 3 4800 के आसपास आंसर होना चाहिए. तो 48 के आसपास वाला जोन मेरे पास एक ही है. अगर आपके पास कैलकुलेटर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में तो होगा नहीं. मेरे पास तो है. ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और सिंस मैंने ऑप्शन देखा तो वो बहुत फार अवे ऑप्शंस है, अगर ये दोनों ऑप्शंस को छोड़ दो तो बाकी ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं. अगर मेरी किस्मत खराब हुई तो ये दोनों ऑप्शंस हो सकते थे आंसर. अगर ये दोनों होता तो शायद मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन ये दोनों आंसर्स नहीं हो रहे. देखो मैंने सिंपली ये किया, ये 4.2 के आसपास है तो ये 2100 हो गया, ये 1700 हो गया, 38,000 हो गया. ठीक है, 3800 तो ये 40 है, ये 40 यानी 160 के आसपास होगा कुछ 1600. बाद में 00 एडजस्ट कर लेना और 1600 इंटू पाई. पाई की वैल्यू 3.14 होती है, नियरली 3, तो 16 इंटू 3 के आसपास होनी चाहिए विच इज 48. सो 48 वाला टाइप आंसर कौन सा है 47230. अप्रॉक्स आंसर चाहिए ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज करो. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन स्मार्टली करोगे तो किया जा सकता है. Moving on to the next question, that is question number 10. So what it says, an industrial robot manufacturing company is tasked to design humanoid robots to be used in a warehouses where the robots needs to pick items from a stack of shelves. ठीक है, तो रोबोट्स बनाने जो stacks of shelves है ये कर सकते हैं. The height of the topmost shelf from the ground is 7 feet. मतलब जो शेल्फ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है 7 feet है. To operate, the robot has to move on a track running parallelly to the stacked shelves. The track is fixed 1 foot away from the base of the stack of the shelves. तो जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ऐसा है, इनके बीच का जो गैप है ना वो 1 feet का है. ठीक है, इनके बीच का जो गैप है वो 1 feet का है. The track is fixed 1 foot away from the base of the stack of the cells. Further, the robot cannot raise its arm more than by 600 degrees. ये 600 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. जैसे अगर मान लो ये रोबोट का आर्म है, ठीक है, तो रोबोट इसको मैक्सिमम कितना ये कर सकता है 60 डिग्री तक स्ट्रेच कर सकता है. तो अगर ये 1 है और रोबोट, अगर मान लो ये रोबोट है, ठीक है, और ये मैक्सिमम 60 डिग्री तक स्ट्रेच कर सकता है, तो
मैक्सिमम लेंथ उसकी जो हैंड पहुंचेगी वो ये होगी. सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट रोबोट कैन अटेन. ठीक है, अज्यूमिंग ये ग्राउंड लेवल है, ये 1 है. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करो. आई नीड दिस लेंथ, सो वी कैन से दैट ओ tan 60 is x by 1 perpendicular by base. Tan 60 is what? It's root 3 na. Tan 60 is root 3. Okay, so x by 1, so the value of x is what? It is root 3. यानी जो मैक्सिमम हाइट तक रोबोट का हैंड जाएगा दैट इज रूट 3. तो रोबोट की हमें क्या चाहिए? सो इफ द रोबोट्स आर्म आर अटैच्ड टू इट्स शोल्डर, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रोबोट? वो ना यहां से सिर्फ रूट 3 तक ही इसका हैंड ये हो सकता है. तो अगर उसको पिक करना है सबसे टॉप वाला, ठीक है, तो वो यहां से यहां तक इसकी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि रोबोट रूट 3 तक ही हैंड ऊपर रेस कर सकता है. तो इतनी हाइट तो रोबोट की मिनिमम होनी चाहिए. सो हाइट ऑफ द रोबोट विल बी व्हाट? द मिनिमम हाइट ऑफ द रोबोट शुड बी व्हाट? It should be 7 minus root 3. So option 3 will be the answer to the question. ठीक है, कुछ नहीं है. आप जो क्वेश्चन करते थे ना उससे हाइट एंड डिस्टेंस के, हाइट एंड डिस्टेंस ही है. बस थोड़ा सा इन्होंने रोबोट नया चीज इंट्रोड्यूस किया. अब एआई का जमाना है, तो जैट सोच रहा है हम क्यों पीछे रहे. ठीक है, हम भी एआई लेके आते हैं, रोबोट्स लेकर आते हैं, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question we have, okay, so in this question what we have to do, so it says that, so there are 5 dustbins along a circular path at a different places. All right, so we have a circular path, okay, and there are 5 dustbins kept. Ramesh takes multiple rounds of the path every morning, always at the same speed. He noticed that it took him a different number of steps to walk between any 2 consecutive dustbins. Okay. Ramesh also noticed that starting from any of the dustbin, it took a minimum of 800 steps to reach every second dustbin. On the other hand, starting from any of the dustbin, it took a maximum of 1260 steps to reach every third dustbin. So if Ramesh one step is 0.77 meters and the width of the path is negligible, so which of the following can be the radius of the circular path? Okay, so the question says that we have a circular path like this. Okay, and inside this circular path, okay, there are 5 places where dustbins are kept. Suppose these are the dustbins kept. Okay, now what it's again further information we have, the minimum number of steps to reach from one dustbin to another dustbin. Okay, the number of steps are not constant. It might be something here else, it might be something else, it might be something else. The number of steps are not constant, but it says that the minimum steps, okay, minimum you will be taking 800 steps to reach every second step, every second dustbin. So if suppose I'm starting from this point, okay, and if I have to reach the second dustbin, so this is the first dustbin and this is the second dustbin, so the minimum number of steps will be what? It will be 800. Okay, or we can say that जो minimum, देखो, if the minimum number of steps you have to take is 800, so हम ये बोल सकते हैं the minimum distance, ठीक है, जो हो सकता है between 2, वो क्या है? 800. So this is the minimum separation between 2 dustbins, or I can say first and the second dustbin. यानी इनके बीच में there are total how many dustbins? There are total 3, मतलब ये एक और dustbin है, यानी ये distance जो है, ठीक है, ये टोटल 800 है, मतलब मिनिमम 800 है. तो अगर ये मिनिमम 800 है, तो जस्ट फॉर अ सेफर साइड अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, एक डस्टबिन से दूसरे डस्टबिन का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो नियरली 400 होगा. एग्जैक्टली 400 नहीं होगा, बिकॉज ये 400 हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट समर व्हाट इट विल बी अराउंड 400. ऑन द अदर हैंड, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डस्टबिन इट टुक अ मैक्सिमम. लेकिन अगर आप किसी डस्टबिन से स्टार्ट करो, ठीक है, एंड इफ यू हैव टू रीच द थर्ड डस्टबिन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सो द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट यू विल बी ट्रैवलिंग विल बी 1260. तो अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, सो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड डस्टबिन इज व्हाट? इट इज 1263. तो अगर मैं रफली एक डस्टबिन के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूं, इट विल बी व्हाट? इट विल बी 420. यानी मोर और लेस आप ये बोल सकते हो कि एक डस्टबिन से दूसरे डस्टबिन के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस डी है, सो रफली द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? इट विल बी समथिंग इन बिटवीन 400 टू 420, मतलब दीज मेनी स्टेप्स. ठीक है, 400 टू 420 स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा.
Now if Ramesh one step is 0.77 meters, so what will be the value of the distance? This is the number of steps, right? तो अगर ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, अगर मुझे डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लेट्स मल्टीप्लाई विद 0.77. ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 0.77. आई एग्री कि ठीक है ये डिस्टेंस जो है वो कॉमन नहीं है, लेकिन दिस विल गिव मी अ रफ आइडिया. मुझे एक रफ आइडिया ही चाहिए. ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है और ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है. मैं मिनिमम और मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं. सो व्हेन यू विल बी मल्टीप्लाइंग 400, so 77 into 4 will be what? It will be 308. And what can be the maximum value of the distance? It will be 77 into 420, which is 323.4. So this is the maximum distance. And total ऐसे कितने distance होंगे? 1, 2, 3, 4, 5. So what will be the maximum minimum value of it will be what? It will be 308 into 5. That's 1540. ठीक है, and what will be the maximum distance? So into 5 अगर आप कर दोगे 323.4 into 5, so it will be 1617. यानी आपका जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, सर्कमफेरेंस का जो मिनिमम वैल्यू होगा इट विल बी आइदर 1540 और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो 1617 है. तो इसके बीच में ही होना चाहिए. तो सपोज अगर मान लो मैंने ये अज्यूम किया, ठीक है, अगर मान लो मैंने डिस्टेंस ये अज्यूम किया, सपोज आई एम इक्वेटिंग इट, सपोज इफ 2 pi r is equals to 1540. ठीक है, मिनिमम वाले केस में रेडियस क्या मिलेगा और मैक्सिमम वाले केस में रेडियस क्या मिलेगा. 2 pi capital R is suppose 1617. So this will give me the minimum possible value of the radius and this will give me the maximum possible value of the radius. ठीक है, let's place it. So it will be what? 1540 has to be divided by 2 divided by 22 into 7. Okay, so the minimum value of the radius will be what? It will be 245. Okay, just a minute. This is 1540, right? So 1540 has to be divided by pi first of all. So divided by 22. Okay, then divided by 2 further, then multiply by 7. So this is the minimum value of the radius can be. And what can be the maximum value of r? So it will be 1617 divide by 2, then divide by 22, then multiply by 7. So it will be 257. Okay, 257. So the minimum value of the radius is 245 and the maximum it can be 257. So what will be the answer to the question? So the suitable answer to the question will be what? It will be something that will be lying between 245 and 257. So 245 और 257 के बीच में कौन सा वैल्यू है? So the acceptable answer to the question will be what? It will be 250. ठीक है, इस क्वेश्चन का जो acceptable answer होगा that will be 250. So this is question number 11 for you. Let's move towards the next question. So next question is a very tricky question, I'll guess. So it says that for how many distinct real values of x does the equation below hold true? Consider a is greater than 0. Clearly they are stating that what can be the value of a? The value of a can be greater than 0. Okay, so a can be anything. A can be any positive number. Okay, it just has to be greater than 0. Next. Now, if you are aware of this property, log b upon log c. Okay, if the base is common, so for example, suppose this is base a and this is also base a. So this can be written like this, log b c. So आप देख रहे हो सेम फंक्शन यहां पर भी है, सेम टाइप ऑफ रिलेशन यहां पर भी आपको मिल रहा है. सो व्हेन आई विल बी सिंप्लीफाइंग इट, ठीक है, व्हेन वी विल बी सिंप्लीफाइंग इट, तो मुझे मिलेगा क्या? वी विल बी गेटिंग, ओके, इट विल बी एक्स स्क्वायर इनटू log 16 with base 32. It will be minus of log 16 base 32 minus x it's again log 16 minus x equals to 0. Now this is common. Okay, so if I'll be taking it common, log 16 32 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Let's take the value, let's simplify it. इसको log वाले टर्म से यही कर लेते हैं.
या अभी के लिए चलो इसको सिंपली ये कर लेता हूं. सपोज इफ आई एम टेकिंग, so what is the value of log 16 upon 32, or log 16 with the base 32? So it will be what? It will be log 2 to the power of 4 and 2 to the power of 5. So ultimately we'll have 4 upon 5. Okay, so this will be 4 by 5 x square minus this will be 4 by 5. This is minus x equals to 0. So definitely it's a quadratic equation. So if this is a quadratic equation, okay, so it can have either 0 solutions or 1 solution or 2 solutions. जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो आएंगे. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करके भी देख लेना. ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस x. बट क्लियरली द क्वेश्चन हैज सेड दैट द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 में 1 भी आता है. अगर सपोज मान लो मैंने a की वैल्यू 1 रख दी. ठीक है, सपोज इफ आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ a एज 1, सो होगा क्या? The function will not be defined now, because log function का जो basic property होता है, the basic property of the log function is your base can't be 0. But if I am taking base as 1, so the log function will not be defined. तो अगर log function defined ही नहीं होगा, so this equation will fail. So if the value of a is 1, okay, I'll not be getting any answer because the equation will fail. If the value of a is not 1, it is something else, I'll be definitely getting a value. तो यहां पर समझ में क्या आ रहा है? मीन्स एज माई वैल्यू ऑफ ए इज चेंजिंग, आई बी हैविंग डिफरेंट आंसर. इफ ए इज नॉट 1, आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, आई कैन गेट द आंसर. बट व्हाट विल हैपन इफ ए इज 1? इफ ए इज 1, then the log function will not be a valid function. In that case, I'll have no solution to it. So in this case, in this particular question, the answer depends on the value of a. Okay, so the best answer to this question is what? It depends on the value of a. Had this would have not been there, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, तो हम मानते कि हाँ चलो लॉग की वैल्यू लॉग ए अगर ए इज योर बेस, तो इट्स वैल्यू कांट बी 1. ठीक है, मैं मानता जरूर, बट अगर ये ऑप्शन है देन द बेस्ट सुटेबल आंसर इज दिस वन. अगर ये नहीं होता देन वी वुड हैव गॉन फॉर 2. इस इक्वेशन को सॉल्व करो, गेट द 2 वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 द आंसर इज व्हाट? इट्स ऑप्शन 5. Moving on to the next question, that is question number 30. Now what this question is, so it says that a farmer has a quadrilateral parcel of land with perimeter of 700 feet. Okay. The two opposite angles of the parcel of the lands are right angles while the remaining two are not. ठीक है, तो एक quadrilateral है. ठीक है, I'm just drawing a rough diagram. Okay. So a farmer has a quadrilateral parcel of land with perimeter 700. तो इसकी total perimeter क्या है? 700. And the two opposite angles of that parcel of the land are right angles. So suppose this one and this one are right angles. Okay. Suppose this and this angles are right angles, while the remaining two are not. And remaining two are not, so we don't have any idea. The farmer wants to do organic farming on that parcel of land. So in this piece of land he wants to do organic farming. The cost of organic farming is rupees 400 square per foot. Okay, the cost is also given. So अभी हमारे पास perimeter of the quadrilateral है which is 400, and we have the cost of farming also. So cost is 400 per square. Consider the following 2 additional piece of information. The first information is the length of one of the sides of the land is 110 feet. ठीक है, एक लैंड का जो पीस है, ठीक है, वो 110 है. द लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ दैट पार्सल लैंड इज 110. कौन सा 110 है नहीं पता. ठीक है, इन चारों में से कोई एक 110 हो सकता है. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉर्नर पॉइंट्स वेयर द 2 नॉन परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ दैट पार्सल ऑफ द लैंड इंटरसेक्ट इज 255 फीट. यानी ये इंफॉर्मेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, वेयर द नॉन परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द पार्सल ऑफ द लैंड इंटरसेक्ट. तो ये दो नॉन परपेंडिकुलर लाइंस हैं. ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 255. Okay, this distance is 255. All right, very good. So determine the amount of money the farmer needs to spend to do organic farming on the entire piece of land. Which of the above additional piece of information is mainly sufficient? Is are minimally sufficient. मतलब ऐसा इसमें क्या डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है.
ठीक है, क्या मैं सिर्फ डेटा मतलब स्टेटमेंट 1 की डेटा से आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 के डेटा से फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या मुझे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों लगेगा, या बिना दोनों के मेरा काम हो सकता है? So if I have to find the cost, right, to determine the amount of money that farmer will be needing. So basically मुझे क्या चाहिए? I need to have the area of this. ठीक है, we need to have the area of this. अगर इसका एरिया किसी तरीके से मिल जाए, so definitely we can get the cost of the farming. Now let's suppose ये information अभी मैं यूज कर रहा हूं. Suppose I am using the statement information of data 2. तो डेटा 2 क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर पॉइंट्स वेयर द ये इज इंटरसेक्टिंग इज 255. अब अगर ये 255 फीट है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो अगर आप सोचेंगे चलो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं. मान लो ये L है, सपोज दिस इज L एंड दिस इज B. ठीक है, सिमिलरली ये मान लेते हैं A है और ये सपोज लेट अस टेक अनदर वेरिएबल्स. बेसिकली फंडा क्या है? वी हैव टू गेट द एरिया ऑफ इट. ठीक है, सो सपोज दिस इज A, दिस इज B, सपोज दिस इज C एंड दिस इज D. नाउ आई एम नॉट यूजिंग दिस लेंथ. ओके, 110 फीट वाला अभी डेटा में यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई एम सिंपली फोकसिंग ऑन द स्टेटमेंट 2 कि कैन आई गेट एन आंसर टू द क्वेश्चन यूजिंग जस्ट स्टेटमेंट 2. तो जब आप स्टेटमेंट 2 को यूज करोगे, ठीक है, सो यू विल से अरे ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है. सो इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी व्हाट? इट विल बी हाफ ऑफ A into B. Half of A into B I have to get. ठीक है, so by any means if I'm able to get the value of A and B, I'll be able to get the area of it. Now what is the data that I can get? So first information I'm having is that A plus B plus C plus D should be 400. This is the perimeter of the given A. Oh, sorry, 700. Perimeter is 700. Sorry. ओके, एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या डेटा और आ सकता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? शुड बी इक्वल्स टू 255 का स्क्वायर. ठीक है, आई हैव वन इंफॉर्मेशन नाउ. मतलब ये एक रिलेशन है. दिस इज वन रिलेशन, दिस इज वन यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से भी एक रिलेशन लिख सकता हूं. वी कैन ऑल्सो से दैट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 255 का स्क्वायर. ठीक है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज 255 का स्क्वायर. अच्छा, नाउ इट सेज दैट लेंथ ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द पार्सल इज 110 फीट. ठीक है, कोई एक पार्सल जो है उसका जो लेंथ है वो कितना है? 255 है. अब 255 किसका लेंथ है? ठीक है, ये नहीं पता. अगर मान लो मैं अभी तो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज किया, तो क्या मैं स्टेटमेंट 2 को यूज करके कैन आई गेट अ कंक्लूसिव आंसर? द आंसर, क्या आप सिर्फ स्टेटमेंट 2 का इंफॉर्मेशन यूज करो. तो जब आप स्टेटमेंट 2 का इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो आपके पास कितना इक्वेशन है? A B plus C plus D. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ठीक है, first, second and third equation. And total how many variables I have? Total how many variables? We have 4 variables. So if we have 4 variables, okay, definitely I'll be needing 4 equations to solve the answer. So अगर मैं सिर्फ और सिर्फ statement 2 को use कर रहा हूं, definitely I'll not be able to get an answer. Statement 2 is not sufficient enough to get an answer. Similarly, अगर मान लो आपने सिर्फ statement 1 को use किया, तो statement 1 में क्या होगा? ये दोनों डेटा आपके पास नहीं होगा. ठीक है, ओनली यू विल हैव दिस डेटा कि सपोज ये 110 है या ये 110 है, बट स्टिल यू विल हैव 3 वेरिएबल्स. सो इफ यू आर यूजिंग ओनली स्टेटमेंट 1, देन आल्सो विल नॉट बी एबल टू गेट एन आंसर. ठीक है, देन आल्सो विल नॉट बी एबल टू गेट एन आंसर. ओके, नेक्स्ट, इफ आई एम यूजिंग बोथ द इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर मैं सारा डेटा यूज कर रहा हूं, इफ आई एम यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2, नो विल आई बी एबल टू गेट एन आंसर? सो फॉर अ टाइम बीइंग मैं मान लेता हूं चलो A की वैल्यू 110 सपोज. तो अगर A की वैल्यू 110 है सपोज, सो व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ B. ठीक है, इफ आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ A एज 110, विल सॉल्व, ओके, व्हाटएवर मे बी द वैल्यू, डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ B. नाउ वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ A and B, ओके, नाउ कैन आई पुट इट इन दिस इक्वेशन A plus B. ठीक है, तो जब आप A प्लस बी में प्लेस कर दोगे तो डेफिनेटली आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा? यू विल बी हैविंग C प्लस D इक्वल्स टू 700.
ओके, C प्लस D इज इक्वल्स टू 700 और यहां पर क्या है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 255। सो आपके पास एक आंसर आ जाएगा क्या? अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक आंसर आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आई डोंट नो कि डेफिनेटली ए ही 255 है, या सॉरी डेफिनेटली ए का ही जो वैल्यू है दैट इज 110 फीट, या सी का वैल्यू 110 है। अगर मैंने यहां पर ये प्लेस किया तो अगर मैंने ए की वैल्यू 110 प्लेस की, आई बी गेटिंग अ डिफरेंट आंसर। इफ सपोज मैं इमेजिन कर रहा हूं चलो डी की वैल्यू 110 है, तो आई बी गेटिंग अ डिफरेंट आंसर। यानी आई नॉट इवन इफ आई एम यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, ठीक है, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट भी यूज कर रहा हूं बट स्टिल आई नॉट बी हैविंग अ कंक्लूसिव आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इवन विद द एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर आप दोनों इंफॉर्मेशन को भी यूज करोगे, यू विल नॉट हैव अ यूनिक आंसर टू द क्वेश्चन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दैट इवन बोथ द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू गिव मी एन आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगर ये क्लैरिटी होता कि चलो ए की वैल्यू ये है, या ये वाला साइड ये है, या ये वाला साइड है, तो डेफिनेटली एक कंक्लूसिव आंसर मिल सकता था। लेकिन अभी के सिनारियो में इवन इफ आई एम यूजिंग बोथ द डेटा, आई एम नॉट बी हैविंग अ कंक्लूसिव आंसर। So the best answer to the question is the amount cannot be determined even with the additional piece of information. ठीक है, every time you'll be getting a different answer. Okay, let's do the next question. So the next question is question number 14. So in question number 14, what we have, consider the quadratic function f of x is equals to ax square plus bx plus a having two irrational roots with a and b being two positive integers. Okay, so a and b are two positive integers, and the best part is this quadratic equation is having two irrational roots. So what is the condition for an irrational roots? कब आप बोलते हो कि हाँ चलो irrational roots है? तो रूट्स का जो फॉर्मूला होता था वो याद है क्या था? इट वॉज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Now what is the condition of having an irrational roots? अगर b square minus 4ac, if b square minus 4ac is not a perfect square, okay, if it is not a perfect square, in that case you will be getting an irrational roots. अगर ये perfect square हो गया, definitely will be getting a rational roots. लेकिन अगर ये perfect square नहीं, for example अगर ये 5 आ गया, तो आपका रूट्स कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 5/2a. सो डेफिनेटली इट विल रूट 5. डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ रैशनल रूट्स. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन इरैशनल रूट्स? योर बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर मुझे इरैशनल रूट्स चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव, सॉरी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. ठीक है, द वैल्यू ऑफ डी शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडीशन है. Okay, next. Having two irrational roots with a and b both being two positive integers. मतलब a और b जो है वो integers है, positive integers. So a and b can't be zero as well. It is any number that is more than zero. Okay, and the maximum limit of a and b is what? It is 9. So we can say that a की जो value होगी it will be from 1 to 9. ठीक है, सिमिलरली बी की भी जो वैल्यू होगी इट कैन बी फ्रॉम 1 to 9. ए और बी की जो वैल्यू है वो 1 to 9 है, 1 to 9 है. यही नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, यही 9 नंबर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं हो सकता. इफ ऑल सच परमिशनेबल पेयर्स ऑफ ए बी आर इक्वली लाइकली, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 9? ठीक है, तो हमें क्या देखना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 9? तो सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि ए प्लस बी या ए बी का क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल सो दैट आई विल बी हैविंग एन इरैशनल रूट्स. तो सबसे पहले लेट्स टेक द मैक्सिमम वैल्यू बी कैन हैव. तो बी का देखो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो ये क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ठीक है, वो इसका डिस्क्रिमिनेंट है. तो अगर आप इसको रूट्स चाहिए तो ये दो चीज होनी चाहिए. एक तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, एंड ऑल्सो
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इट शुडेंट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला कंडीशन, ये दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए। वही जो नंबर्स हैं जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा डिजायर्ड पेयर हो सकता है। और यहां पर जो c है दैट इज ऑल्सो a और a भी है। सो बेसिकली हमारे क्या देखना है, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। सो व्हाट आर द नंबर्स दैट विल टेक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ b एज 9। अगर b की वैल्यू 9 हमने रखा, सो व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a आई कैन हैव? ठीक है, अच्छा, if b square, so b square is 81, so can I have the value of a as 1? अगर a का वैल्यू आप 1 रखोगे तो 4 into 1 is 81 minus 4, it will not be it is greater than 0 but it is also not a perfect square, so one combination can be 9 1. Similarly दूसरा combination हो सकता है 9 2, ठीक है, 9 2 will also work। फिर हो सकता है 9 3, 9 3 will also work। फिर हो सकता है 9 4, एक बार चेक कर लो 9 4 हो रहा है कि नहीं। 9 square is 81. Okay, what will be 4 square? 4 square is 16. So 16 into 4 is 64. So 81 minus 64. It is working. 9 into 3 work कर रहा है क्या? देखो 3 square is 9. 9 4s are 36. So 81 minus 36. It is 45 I guess. तो ये भी work कर रहा है। अगर आप इसमें से 16 minus कर दोगे 81 minus 16, again it will not be a perfect square. So it is working. Can I have 9 comma 5? Let's check it out. So 81 माइनस ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 5 is 100, ठीक है, so it will be 25 into 4. So in that case it will be a negative value, so 9 comma 5 will not work. तो 9 के साथ ये वैल्यूज वर्क करेंगे, 9 1 9 2 9 3 9 4. If you will be keeping a's value as 5 it will not work. I need this value to be positive as well. Next let's try next number of b. I'm taking let the value of b as 8. So if the value of b is 8, what are the different values that will work now? So it is 64. So definitely 64 minus 4, 8 and 1 will work. ठीक है, 8 and 2, 2 का square is 4. So 64 minus 16 is 48. So definitely 8 and 2 will also work. ठीक है, next 64 minus 3 square is 9. So 64 minus 36, definitely 28 के आसपास कुछ आएगा, that will also work. Next 8 comma 4, 4 square is 16, 16 into 4 is 64 and that 64 minus 64 is 0. 0 is a perfect square, so 8 comma 4 will not work. 8 comma 4 will not work. देख लो 4 into 16, so that is 0, so this will not work. So with 8 I have only these three combinations. Next number will be what? It will be 7. So 7 square is what? 7 square is 49. So let's write 49 here. So 49 minus 4, definitely 7 comma 1 is working. Next 2 square is 4. So 49 minus 16, definitely 49 minus 16 is working. कितना हो रहा है 49 यानी 39, कुछ 33 के आसपास हो रहा है. So 7 comma 2 is working. 7 comma 3 वर्क कर रहा है क्या? 3 का स्क्वायर इज 9, 9 4 is 36. So 49 minus 36 is working. And definitely 7 comma 4 will not work. अगर यहाँ नहीं वर्क करा तो यहाँ भी नहीं वर्क करेगा. Next number, let's take the value of b as 6. तो ये हो गया 6 square is 36. तो 36 minus 4. So 6 comma 1 is working, right? 6 comma 2. So 2 square is 4. Okay. So and this is 36. So 36 minus ये कितना हो जाएगा? 4 4 16. So 20. 6 comma 2 is working. Next 36 minus 4 into 3. This will be 0 ना? 3 square is 9. 9 4 is 36. 36 minus, so 6 के बाद 6 1 and 6 2 will only work. Next 5 के साथ देख लो. 5 square. 5 square is 25. So 25 minus 4. So 5 and 1 will work. Next 2. So 2 square is 4. 4 into 4 is 16. So 25 minus. Now this अगर आपने 5 comma 2 रखा, ठीक है? So 5 comma 2 is what? It is 9. 9 is a perfect square. So 5 comma 2 will also not work. 5 comma 2 will not work. It will not fetch a irrational root.
नेक्स्ट 5,2 हो गया, नेक्स्ट विल बी हैविंग 4, तो 4,1 हो जाएगा, ठीक है। 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 4, ठीक है। अच्छा 4 के साथ और कोई नंबर का काम करने वाला है क्या? 4 स्क्वायर इज 16 और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इट विल बी अगेन 16, सो 4,1 इज ओनली वर्किंग। नेक्स्ट 3 and work, 3 and work, sorry 3 and 1 will it work? 3 square is 9, 9 minus 4, again it will 3,1 will work, ठीक है। 2,1 वर्क करेगा क्या? 2 square is 4, so it will not work, so further we'll have no values, तो टोटल कितने वैल्यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so total I am having 15 such values which is satisfying the given condition. Out of these numbers, how many numbers are there which is greater than 9? So this is greater than 9, this is greater than 9, this is greater than 9, okay. This one will be greater than 9, this is greater than 9, this is greater than 9. No other values. So 1 2 3 4 5 6 7, okay, so there are total 7 values which is working. So what will be the answer to the question? It is 7 upon 15. Okay, a very good question, a blend of concept of quadratic equation and probability. So that's question number 14 for you. Moving on to the next question, that's question number 15. So what we have to do in question number 15? So question number 15 says that 8 employees of an organization have been rated on a scale of 1 to 50 for their performance. Okay, so how they are performing? So they have been rated on the scale of 1 to 50 and all ratings are integers. Means whatever marks you'll be getting, you'll be getting an integer value. It's not like you'll be getting 8.5 or 7.98. It will be an integer value 1 2 3 like that. The overall rating of the 8 employee is 30. Oh sorry, the overall average rating or average of all the rating is what? अगर आपने सारे ratings का average निकाला, so average क्या है? Average is what? It is 30. While the 5 employees with the highest rating, ठीक है, अगर मान लो मैंने सारे जो 8 employees है, I have arranged them according to the marks or the rating which they have got in an ascending order. So what they are saying that while the 5 employees with the highest rating, ठीक है, तो ये जो टॉप के 5 स्टूडेंट्स है, ये जो टॉप के 5 स्टूडेंट्स है, इनकी जो रेटिंग है दैट, इनकी जो एवरेज रेटिंग है दैट इज 38. So if the average rating is 38, so what will be the total of their ratings? The total of their ratings will be what? It will be 190. 38 into 5, the total of their ratings is 190. And what will be the total rating of all 8? So total rating is 30 into 8 because the average is 30 and there are 8 people. So this is total 240. Okay. So the total ratings of them is 190. The total rating of them is, the overall rating is 240. So what will be the rating of these 3? The remaining 3 people. इनकी जो रेटिंग हो जाएगी दैट विल बी 240 माइनस 190 विच इज 50. तो इनकी जो टोटल रेटिंग है, ठीक है, ये जो 3 स्मॉलर पीपल है या जो 3 सच पीपल है जिनकी सबसे स्मॉलेस्ट रेटिंग है, ठीक है, सपोज आई एम राइटिंग ABCD, A B C up to H. I have arranged them in ascending order. So we can say that whatever rating A, B and C have got total, the total sum of them will be what? It should be what? It should be 50. ठीक है, whatever rating A, B and C has got, अगर आप सभी को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? It is 50. Next, while the 5 employees with the lowest ratings average 25. Instead of top 5, अगर मान लो आपने bottom 5 को देखा, तो बॉटम 5 का जो एवरेज आ रहा है वो कितना है? 25. तो अगर एवरेज 25 है तो टोटल सम क्या होगा? 25 into 5 यानी 125. सो व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज 3? ये जो आखिरी के 3 है, ठीक है, बेसिकली यानी EFGH, लास्ट 3 पीपल FG एंड H, इनकी रेटिंग्स क्या हो जाएगी? इनकी टोटल रेटिंग हो जाएगी 240 माइनस 125. सो 240 माइनस 125 इज व्हाट? इट इज 115. ठीक है. So which of the following about the ratings obtained by the 8 employees is definitely false? तो इसमें से कौन सा ऐसा ये है डेटा जो डेफिनेटली फॉल्स है? ठीक है, द फर्स्ट वन इज द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 38. ठीक है,
द सेकेंड हाईएस्ट रेटिंग जो है वो 38 है। क्या ये फीजिबल हो सकता है? सेकेंड हाईएस्ट रेटिंग में 38 हो सकता है। ठीक है, कैसे 38 हो सकता है? अगर मान लो आपने सभी का 38 38 38 ही रखा तो ओवरऑल भी क्या आ जाएगा? 38 आ जाएगा। जैसे इन 5 लोगों का एवरेज 38 है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, जो सेकंड हाईएस्ट रेटिंग है उसको 38 रखना है। तो मान लो ये मैंने 38 रखा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखना है कि FGH मिलाकर 115 भी होना चाहिए। तो अगर ये तीनों की वैल्यू 38 38 38 रख ली जाए तो क्या होगा? 38 प्लस 38 प्लस 38 इज 114। ठीक है, तो ये 115 लेकर आना है। मुझे मेक श्योर करना है कि F प्लस G प्लस H की वैल्यू 115 भी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो एवरेज है वो 38 होना चाहिए। तो क्या ये फीजिबल है? थिंक इट इज फीजिबल। क्यों नहीं फीजिबल हो रहा है? देखो, अगर ये 38 है, इसे 37 रख लेते हैं। ठीक है, और इसे 40 रख लेते हैं। एवरीथिंग इज वर्किंग। 37 प्लस 38 प्लस 40। ठीक है, तो ये 115 हो गया। अब अगर ये 115 है, टोटल 190 चाहिए, सो माइनस 190, तो इनकी 37 होनी चाहिए। तो इसे भी 38 रख लेंगे, इसे भी 38 रख लेते हैं। नहीं, ये लेकिन फिर नहीं हो पाएगा। 75 चाहिए, तो 37 37। ओके, आई विल कम टू इट। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट के बाद पहले फर्स्ट पॉइंट पे, पहले सेकंड ऑप्शन पे काम कर लेते हैं। द मीडियन ऑफ द 8 रेटिंग्स इज 37.5। ठीक है, जो मीडियन होगा 8 रेटिंग्स का वो 37.5 होना चाहिए। तो जब आपने मीडियन में क्या आएगा, ये स्टार्टिंग के 3 और ये टॉप 3 अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 का टोटल सम कितना है? स्टार्टिंग के 3 का टोटल सम है 50 और टॉप के टोटल 3 का सम क्या है? 150। तो अगर मैं इन 6 का ऐड करूं तो 115 प्लस 50 हो गया। व्हेन आई एम एडिंग द least 3 and the maximum 3, the sum is 165. So what should be the sum of the remaining 2? The remaining 2 का sum क्या होना चाहिए? 240 minus 165 which is 75। यानी ये जो बीच के जो दो टर्म्स है, ठीक है, ये जो मिडिल के दो टर्म्स है, इनका मार्क्स कुछ भी हो बट इनका जो सम है वो 75 ही होना चाहिए। Why this is 75? देखो, the total marks here is 50. The total marks of these three is what? It is 150. A B प्लस C का 50 है, F प्लस G प्लस H का 115 है। तो अगर आप टोटल ऐड करोगे तो टोटल कितना हो रहा है? 165। सो डेफिनेटली इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 75। यानी आप मार्क्स चाहे कुछ भी रखो, इनका टोटल होना चाहिए 75। और सिंस आई हैव अरेंज्ड देम इन असेंडिंग ऑर्डर, सो व्हाट विल द मीडियन ऑफ दिस डेटा? सिंपली ये जो दोनों डेटा है उनका एवरेज। तो अगर टोटल सम 75 है डिवाइडेड बाई 2, तो 75 by 2 is what? It is 37.5. So obvious सी बात है, इनका जो मीडियन होगा that can be 37.5। तो हमें तो चाहिए which is definitely false। ठीक है, तो मीडियन 37.5 is definitely correct। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिस इज टोटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द लोएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 1। क्या लोएस्ट रेटिंग 1 हो सकता है? देखो, ये 75 होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर ये 75 है तो आपको देखना पड़ेगा कि 75 कैसे बन सकता है। 75 के लिए एक को 37 रखना पड़ेगा और एक को 38 रखना पड़ेगा। ठीक है, या एक को कम रखना पड़ेगा, एक को ज्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा करते जाओगे तो आपको देखो, इनका इन लास्ट 3 का सम मिलाकर भी आपको 115 लेकर आना है। 115 को जब मैं इक्वली डिवाइड करूं 3 लोगों में तो वो नियरली 38.3 है। ठीक है, इनके पास जो मार्क्स है ना, FGH के पास जो मार्क्स होना चाहिए वो नियरली 38 के आसपास ही होना चाहिए। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा इसको कम नहीं कर सकते। ये जो ये है, कौन है? डी का जो मार्क्स है मैं इसको बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डी का मार्क्स रख रहा हूं 37। ठीक है, और ई का मार्क्स रख रहा हूं 38।
अब अगर ई का मार्क्स 38 है, ठीक है, एफ का भी मार्क्स सपोज अगर मैंने 38 रख लिया, 38 प्लस 38 माइनस 115, इट शुड बी 39, ठीक है, ये फीजिबल हो रहा है। ये 38 है, ये 39 है, और अगर मान लो ये 38 रख लिया, ये 39 रख लिया, ठीक है, सो 37 और 38 है, ये 37 और ये 38 है, तो आप ये क्या हाईएस्ट मार्क्स क्या है? द थर्ड लोएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 37, ए बी एंड सी, थर्ड लोएस्ट रेटिंग क्या 37 हो सकता है? इसकी वैल्यू 37 हो सकती है क्या? ये मिलाकर देखो 50 होना चाहिए, तो अगर ये 37 हमने रख लिया मान लो, ठीक है, सपोज जस्ट इमेजिन कि ये 37 हो गया, तो अगर ये 37 है तो ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? ये दोनों मिलाकर 13 होना चाहिए, तो ये फीजिबल है। एक को आप 1 रख लो, एक को 12 रख लो, सो 1 12 30 37 असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। दिस इज ऑल्सो 37, मतलब द मार्क स्कोर ऑफ डी, लेट मी राइट इन प्रॉपर वे, A, B, C, D, E, okay, then we have F, G and H. I have simply arranged them in ascending order. इनका जो टोटल सम होना चाहिए वो 115 होना चाहिए, ठीक है, इनका जो टोटल सम होना चाहिए वो 50 होना चाहिए एज पर द गिवन कंडीशन। सो डेफिनेटली इनका जो टोटल सम होगा वो 75 होगा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो अगर मान लो मैंने फिफ्थ ऑप्शन पे देखा, द थर्ड लोएस्ट रेटिंग ऑब्टेन इज 37, अगर मान लो इसे 37 मार्क्स दे रहे हो आप, तो इसे भी 37 दे दो, इसे 38 दे दो, क्योंकि देखो ये 50 होना चाहिए और इन दोनों का सम मिलाकर 13 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम मिलाकर वी कैन गेट 30, ठीक है, वी कैन गेट 30। अगर मैं इसे 37 रख रहा हूं तो दैट इज फीजिबल, तो ये फॉल्स नहीं है, ये ऐसा वर्क कर सकता है, ठीक है, दिस वे इट कैन वर्क। और इन तीनों का मिलाकर 115 होना चाहिए, तो 115 के लिए आप क्या कर रहा हूं, मैं इसे 38 दे रहा हूं, सपोज इसे भी 38 दे रहा हूं, तो कितना हो गया 38 इंटू 2 माइनस 39, 115 माइनस 38 माइनस 38, सो दैट इज 39। सो आई थिंक दिस कैन बी ये, अच्छा ये 37 और ये 38, दिस इज द ओनली वे, 75 लाने का यही वे। अगर आप इसको कम करोगे तो आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, तो अब इसे भी बढ़ाना पड़ेगा, तो वो नहीं कर सकते। सो द थर्ड लोएस्ट रेटिंग ऑब्टेन इज 37, यस इट इज फीजिबल, इट कैन बी डन। द हाईएस्ट रेटिंग ऑब्टेन इज 40, ये नहीं फीजिबल है। देखो द हाईएस्ट रेटिंग हो रहा है वो 39 है, 39 से ज्यादा आप जा नहीं सकते। कैसे नहीं जा सकते? देखो अगर सपोज मान लो मैंने इसे 40 अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इन दोनों में से कहीं तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली यहां तो करेंगे नहीं, ठीक है, यहां पे कर देते हैं। तो अगर मान लो यहां पर मैंने इसे 37 कर दिया, तो अगर ये 37 हो गया तो ये इससे छोटा नहीं हो सकता, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, ये इससे छोटा नहीं हो सकता, यानी ये भी 37 होगा, और इन दोनों का सम मिलाकर 75 होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए 38, यानी कंडीशन फेल हो गया। यानी डेफिनेटली मैं 4 तो नहीं रख सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 तो आप नहीं रख सकते। द लोएस्ट रेटिंग ऑब्टेन्ड इज 1, डेफिनेटली 1 हो सकता है, ये 1 रख लिया, इन दोनों का सम मिलाकर बस 13 रखना ना, तो ये 1 हो गया, ये 12 हो गया, नो वरीज, सो दिस कैन वर्क, द मीडियन वाला पार्ट विल वर्क, एंड द सेकंड हाईएस्ट रेटिंग इज 38, ये सेकंड हाईएस्ट रेटिंग क्या हो रहा है, ये भी 38 हो रहा है, ये 39 है और ये 38 है, सो ईच एंड एवरी कंडीशन इज फीजिबल अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन 4, सो 4 को छोड़कर हम सारे कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, let's see the next question, which is question number 16. So question number 16 is, Arun selected an integer x between 2 and 40, both inclusive, ठीक है, तो 2 और 40 के बीच में वो कोई भी नंबर चूज कर रहा है और दोनों में से कोई, मतलब दोनों इंक्लूसिव है, 2 भी और 40 दोनों इंक्लूसिव है। He noticed that greatest common divisor of the selected integer x and any other integer between 2 and 40 both inclusive is 1, यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका जो HCF है 1 है, यानी ऐसे नंबर्स होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए, तो आपका x ऐसा होना चाहिए कि आप उसको किसी भी नंबर के साथ अटैच कर दो, उसका HCF 1 हो, या x एंड एनी अदर नंबर, ठीक है, x एंड एनी अदर नंबर, उनका जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1।
सो डेफिनेटली x जो हमारा नंबर होना चाहिए वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, अगर वो कॉम्पोजिट नंबर हुआ तो वो 2 3 4 ये जो छोटे मोटे नंबर है उससे तो डिवाइड हो जाएगा। सो डेफिनेटली हमें देखना क्या है, हमें बस प्राइम नंबर्स देखने हैं बिटवीन 2 and 40। लेकिन क्या सारे प्राइम नंबर्स विल वर्क? नो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2। अब अगर मान लो मेरा x जो है वो 2 है, इफ आई हैव सेलेक्टेड x एज 2 और मान लो मैंने दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लिया 8, सो 2 and 8 आर नॉट को प्राइम, सो डेफिनेटली 2 के साथ ये नहीं वर्क कर रहा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। सो 3 एंड देयर आर लॉट मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 2 and 40, सो दिस इज नॉट, 3 विल ऑल्सो नॉट वर्क। ठीक है, 4 तो है ही नहीं। 5 के साथ भी देखो, 5 और बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे आपको 2 से लेकर 40 में 5 का, तो 5 विल ऑल्सो नॉट वर्क फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू। 6 तो है ही नहीं। 7 का भी बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे 2 से 40 के बीच में। 8 तो है ही नहीं। 9 तो है ही नहीं प्राइम नंबर। 10 है नहीं। 11 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स है। 12 13 के भी बहुत सारे मल्टीपल्स है। 13 है, 26 है, 14 15 16 17। अगर मान लो मैंने 17 रखा तो 17 के साथ एक नंबर आ जाएगा विच इज 34। अगर आपने x की वैल्यू 17 रखी तो 17 का प्रॉब्लम क्या है कि 34 उसका मल्टीपल है, तो 34 के कारण 17 एंड 17 विल नॉट वर्क। लेकिन अगर मान लो मैंने 18 नहीं है 19 भी रखा तो 19 का एक मल्टीपल आ जाएगा 38। अगेन इट इज बिटवीन 2 and 40। सो 19 नहीं, 20 नहीं, 21 22 23। ओके, सपोज आप ले रहे हो x की वैल्यू 23। सपोज इफ x is 23, now pick any random number between 2 and 40, anything of your choice। 23 and that selected number will always be co-prime, क्योंकि 2 से लेकर 40 के बीच में 23 का there is no such multiple, so definitely one number is 23। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? 24 25 26 27 28 29। अदर नंबर विल बी 29 और कोई भी नंबर आप चूज कर लो, डेफिनेटली वो भी क्या रहेगा? को प्राइम रहेगा। 29 30 31, ठीक है, 31 विल वर्क। 31 is co-prime with all such numbers between 2 and 40। सिर्फ 2 and 40 का रेंज ही देखना ना। 31 के बाद 32 33 34 35 36 37 हो जाएगा, ठीक है। सो 37 38 एंड 39। सो बस यही हो रहा है ना। 23 हो गया, 23 24 25 26 27 28 29 29 हो गया, 30 31 32 33 30 31, ठीक है। 31 के बाद 32 33 34 35 36 37 और कोई नंबर नहीं, क्योंकि 39 का तो 13 एक फैक्टर हो जाएगा। सो देयर आर 4 सच नंबर्स। इन 4 नंबर्स का आप किसी के साथ भी पेयर कर लो, वो डेफिनेटली क्या होंगे? को प्राइम होंगे। सो आंसर टू द क्वेश्चन विल बी व्हाट? इट विल बी 4। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू।